Okay, okay. Okay. Let me start you. What I was telling that what is the Feld's rule? What the rule says that when a particular pile you consider and it is connected with number of piles, so for each connected pile, the efficiency or the effect of the nearest pile is connected, no? So the value is reduced by 1/16. एक अगर से कनेक्टेड है तो 1/16, दो कनेक्टेड है 2 into 1/16,
3 कनेक्टेड है, 3 इंटू 1/16। याद रखो इसके ऊपर 100% आपको एमसीक्यू दो तो मिनिमम आने वाले हैं, दो तो मिनिमम आने वाले हैं। ओके, सो हम करेंगे अब क्वेश्चन। सबसे पहले वी विल कंसीडर टू पाइल्स are there and they are in group. So when you consider this particular pile, it is connected by how many piles? It is connected by one pile only. Even when you consider this one, it is connected by one pile. So whenever either you consider this or this, it is connected by a single pile. So when it is connected by a single pile, the efficiency should be reduced by 1 into 1/16. So 1 into 1/16. So if you take LCM and all these things, it is 15/16. So efficiency of the pile by Feld's rule when two piles are in group is 93.5%. When two piles are there and when they are in group, their efficiency is 93.5%. Got the idea? Okay. Now I will give the example of 3 piles. आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है आपको, 1 2 4 बार करेंगे, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको समझ में आता। You try to follow it. Okay. Now next is 3 piles are there. So any pile you take, either you take this is connected by 2 piles, you take this one which is connected by 2 piles. When you take this one, it is connected by 2 piles. So every pile is connected by 2 piles. Any pile you consider. So it means that here the efficiency is reduced by 2 into 1/16. Here the efficiency is reduced by 2 into 1/16. And 1 minus 2 into 1/16 is 14/16. So when 3 piles are in group, then their efficiency from Feld's rule is 87.5%. It is 87.5%. देखिए जब दो थे 93.5. Okay, it is don't worry, I will repeat once again. ये 2-3 बार बताना पड़ता तब आपको समझ में आता। देखिए जब 2 पाइल थे, आप कोई भी पाइल एक सेलेक्ट करो, या तो ये सेलेक्ट करो या तो ये सेलेक्ट करो। आई विल सेलेक्ट दिस वन। तो ये कितने पाइल से कनेक्टेड होगा सर? सिर्फ एक पाइल से कनेक्ट होगा इसमें। तो अगर से एक पाइल से कनेक्ट हुआ तो आप एफिशिएंसी कितना कम करना? एक बार 1/16 कम करना। सो 1 minus 1/16, it is 15/16. So it is 93.5% when 2 piles are there. आपको नहीं भी समझ में आ रहा? Try to understand it. मैं आपको फिर रिपीट करता हूं एक बार होने के बाद, तब समझ में आता। फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल लगता। सो नाउ व्हेन 3 पाइल्स आर देयर, आप कोई भी पाइल ले लो। ये पाइल कंसीडर करा मैं, ये इसको कनेक्टेड है, ये इसको कनेक्टेड है, तो 2 हो गए। तो कितने हो गए? 2 हो गए। Why 1/16 मींस इट इज फेल्ड्स रूल। महेश, फेल्ड क्या करा मालूम है? वो रूल बनाया, उसको फेल्ड्स रूल, वो वर्क करा, उसके ऊपर रिसर्च करा, तो उसको लग गया कि एक पाइल अगर से एक से कनेक्टेड है तो उसका एफिशिएंसी 1/16 कम होता, तो इसीलिए हम 1/16 से कम कर, तो रूल ही है वो फेल्ड्स रूल। Okay, so now coming to 3 piles. So when 3 piles are there, any pile you consider, it is connected by 2 piles. So when it is connected by 2 piles, the efficiency reduced by 1 minus 2 into 1/16. So it is 14/16 and it is 87.5%. So the thing here is when they were in 2, it was 93.5, and when 3 piles are there now, it is 87.5%. It is 87.5%. Okay, third one. नाउ अब यहां से थोड़ा शुरू होता आगे आगे, ये भी इजी है, लेकिन आगे आगे 5 आते हैं आपको और क्लियर डाउट आते जा। 4 पाइल्स आर देयर। देखिए एक पाइल है, 2 3 4, हम ऐसा अरेंज करेंगे। ओके, अब हर एक को एक दूसरे से कनेक्टेड करो। व्हेन आई कंसीडर दिस पाइल, पाइल ए, देखो यहां नोट किया हूं मैं, पहला पाइल, तो ये इसको कनेक्टेड है 1, ये इसको कनेक्टेड है 2, ये 2, तो एक और मैं गलत किया, ये यहां पर एक डायग्राम बनाना था, इसको भी एक कनेक्शन होता, तो 3, मतलब इस पाइल से मैं कितनों को कनेक्शन कर सकता हूं?
3 पाइल्स को। मुझसे गलती हो गई प्लीज, यहां पर मैं एक डायगोनल और बनाना था। ओके, सो व्हेन आई कंसीडर दिस पाइल, it is connected to this pile, it is connected to this pile, got it, and it is connected to this pile. तो कितने पाइल्स को कनेक्शन हुआ है? 3 piles को. Again it is connected to 3 piles. When I consider this one, it is connected to this pile, it is connected to this pile, diagonally it is connected to this pile, again 3. When I consider this one, this is considered to this one, this is connected to this one, this is connected to this one. So 3 piles, Sudha, any problem? You can write in the chat box. So now 1 minus each pile is connected to 3 piles. So it should be reduced by 3. 1 minus 3 into 1 by 16. So it is 87.3. 87.3, little by little again less when 4 piles are there. When 4 piles are there. ओके, अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप सुनते जाओ, सिर्फ मैं आपको फिर रिपीट करता हूं। अब आ जाओ यहां पर, यहां से आपको थोड़ा समझ में आता। अब 5 पाइल्स है। अब तक जो हम पाइल्स कंसिडर कर रहे थे सबको इक्वल थे, हर एक किसी को 1 आया 2 पाइल में, 3 पाइल में 2 आए, 4 पाइल में 3 कनेक्शन आए। लेकिन 5 पाइल्स को हम कैसा भी अरेंजमेंट करो सबको इक्वल नहीं आते। इट मींस दैट सी 5 पाइल्स आर देयर, 1 2 3 4 और ये सेंटर में एक 5 पाइल्स में ऐसा अरेंज किया। प्लीज ये प्रॉब्लम अच्छी तरह सुनो, ये प्रॉब्लम अच्छी तरह सुने तो पिछले आप आपको अपने आप समझ में आती। नाउ हियर 5 पाइल्स आर देयर एंड आई हैव अरेंज्ड देम लाइक दिस 1 2 3 4 5। आप बोलेंगे सर आप ऐसा ही क्यों करें, मैं अपने तरीके से करता हूं अरेंज, तो आप करके देखो, लेकिन हर दूसरे को कनेक्शन वहां पर आना चाहिए। ओके, सो नाउ व्हेन आई हैव अरेंज्ड लाइक दिस, I will connect this pile to this one, I will connect this pile to this one, फिर इस पाइल से इसको कनेक्ट करो, इस पाइल से इसको कनेक्ट करो, इस पाइल से इसको कनेक्ट करो, इस पाइल से इसको कनेक्ट करो। अब मैं सबसे पहले कंसीडर करूंगा ये पाइल। अब मुझे ये बोलो, ये पाइल कितने पाइल्स को कनेक्टेड है? ये पाइल कितने पाइल्स को कनेक्टेड है? देखिए, इस पाइल से इस पाइल को कनेक्शन है 1, इस पाइल से इस पाइल को कनेक्शन है 2, इस पाइल से इस पाइल को कनेक्शन है 3। मतलब एक पाइल 3 पाइल को कनेक्शन है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि बीच में ये पाइल आ गया। तो दिस पाइल इज कनेक्टेड टू 3 पाइल्स, एक ये, दूसरा ये, और थर्ड वन इज दिस वन। सो दिस पाइल इज कनेक्टेड टू 3 पाइल्स। आर यू श्योर नाउ? उसी तरह ये पाइल ले लो और मुझे ये बोलो ये कितने पाइल्स को कनेक्टेड हुआ? 1, फिर सेंटर पाइल 2, फिर साइड पाइल 3। नाउ यू कंसीडर दिस पाइल, दिस इज कनेक्टेड टू 1, दिस इज कनेक्टेड टू 2 एंड दिस इज कनेक्टेड टू 3। तो ये पाइल भी 3 पाइल्स को कनेक्टेड हुआ। एंड व्हेन आई कंसीडर दिस वन, 1 2 फिर सेंटर को, तो इसका मतलब यहां 5 में से जो 4 पाइल्स है, 5 में से जो साइड के 4 पाइल्स है, ये कितने पाइल को कनेक्टेड हो गए? 3 पाइल्स को कनेक्टेड हो गए। तो वो 4 पाइल्स का एफिशिएंसी क्या आता? 4 पाइल्स का एफिशिएंसी क्या आता? 1 माइनस 3 इंटू 1/16। 1 माइनस 3, क्योंकि 3 को कनेक्ट हो गए तो चारों का एफिशिएंसी आता 13/16। अभी प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ, सिर्फ सुनते जाओ आप। तो चारों पाइल्स का एफिशिएंसी कितना हो रहा? 1 माइनस 3 इंटू 16, दैट इज 13/16। अब सेंटर वाला पाइल ले लो और मुझे ये चार्ट बॉक्स में लिखो सेंटर वाला पाइल कितने पाइल से डायरेक्ट कनेक्शन में है। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, सेंटर वाला पाइल कितने पाइल से डायरेक्ट कनेक्शन में है? यस, वेरी गुड, एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड नाउ। इट इज कनेक्टेड 4। वेरी गुड बेटा। तो देखिए सेंटर वाला पाइल है, ये इसको कनेक्ट हुआ डायरेक्ट, इसको कनेक्टेड हुआ डायरेक्ट, इसको कनेक्टेड हुआ डायरेक्ट, इसको कनेक्टेड हुआ डायरेक्ट। मतलब ये 4 पाइल से है, तो इसका एफिशिएंसी आता 1 माइनस 4 इंटू 16। तो 4 पाइल्स का एफिशिएंसी आता 13/16, क्योंकि ये चारों पाइल्स
3 पाइल को कनेक्शन है और एक पाइल 4 पाइल्स को कनेक्टेड है डायरेक्ट, इसलिए इसका एफिशिएंसी आता 1 - 4/16। लेकिन हमको पूरे ग्रुप का लेना है, तो ग्रुप का कैसा निकालेंगे हम? देखिए ग्रुप का कैसा निकालते हैं, 13/16 इज 0.8125 एंड 4/16 इज 0.75। तो 4 इंटू 13/16 प्लस 1 इंटू कितना होता है, 12/16 और 0.75 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पाइल्स, दैट इज 4 + 1, और इसको सिंप्लीफाई करो आप तो आपका आता 0.8 एंड इट इज 80%। सो द एफिशिएंसी ऑफ द पाइल्स व्हेन दे आर कनेक्टेड, 5 piles are connected, then their efficiency is 80%. Then their efficiency is 80%. एक बार ये प्रॉब्लम देखो और सोचो, नहीं समझ में आया तो फिर रहने दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अगला प्रॉब्लम कराता हूं, मैं पूरा करके फिर रिपीट करता हूं, then you will come to know, not that much difficult। और याद रखो 2 क्वेश्चंस मिनिमम, लास्ट टाइम तो 3 आए थे, लास्ट टाइम तो मैं ही सेट किया था, 3 दिया था, तो इस पे 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम कोई भी करने दो सेट, यू विल गेट इट। और ये रट मार के गए तो भी आता आपको, 1 को इतना है, 2 को, क्योंकि आप वो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पेपर में 17-18 पाइल का भी पूछा था, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछता है एमसीक्यू में, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मुझे ये एक बार 2 मिनट टाइम देता हूं मैं आपको, ये पाइल का अरेंजमेंट है 5 पाइल्स का, यू गो थ्रू इट एंड प्लीज चेक इट, और कहीं कोई एवरेज निकालने में या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझको, और जब मैं आगे और 2-3 प्रॉब्लम करूंगा आपको तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। Yes, any doubt please? Shall I move further? Okay, नहीं भी समझ में आया don't worry, I will go for the next one and you will come to know slowly। अब ले लो 6 piles, अब आ जाओ 6 piles को। अब 6 piles में 1 2 3 4 5 6, मैं ऐसा अरेंज कर रहा हूं 6 piles, ओके 6 piles। अब मुझे ये एंड वाला पाइल मैं कंसिडर करता हूं, ये वाला पाइल, ये फर्स्ट पाइल प्लीज दिख रहा ना आपको, दिस एंड वाला पाइल। अब मुझे ये बोलो, ये एंड वाला पाइल डायरेक्ट कितने लोगों के साथ कनेक्शन है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो एंड वाला जो पाइल है वो 3 पाइल के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। डू यू एग्री विद दिस? उसी तरह इस एंड वाले पाइल को भी पकड़ो, ये भी 1 2 और ये डायगोनली 3। तो ए एंड वाला पाइल भी 3 पाइल के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद ये एंड वाला पाइल 1 2 एंड 3, और ये एंड वाला पाइल 1 2 एंड 3। इसका मतलब जो एंड में पाइल्स है वो सभी डायरेक्ट कितने पाइल से कनेक्टेड है, वो 3 पाइल से कनेक्टेड है। वो कितने पाइल से कनेक्टेड है, 3 पाइल से कनेक्टेड है। ये समझ में आया आपको? हाँ, उसी तरह मुझे ये बताओ, चैट बॉक्स में लिखो कि ये दोनों पाइल्स डायरेक्टली कितने पाइल के साथ कनेक्टेड है। सोचो आप, गिनो और बोलो, ये दोनों सेंटर वाले पाइल्स जो है ये कितने पाइल्स के साथ कनेक्टेड है? Okay, most of you have written the answer. Okay, all of you are saying 5. Let me check it. Okay, एक बार और सोचो, हाँ कितने के साथ कनेक्टेड है? ओके, लेट मी सी, सभी लोग बताए आंसर यहाँ पर। ओके, लेट मी सी, देखो इधर प्लीज, ये पाइल है, ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4 और ये 5। यस यू आर राइट। तो ये वाला पाइल भी 5 पाइल्स को कनेक्टेड है, ये आल्सो 1 2 3 4 5। मतलब एंड वाले पाइल्स जो है ये 4 पाइल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, और सेंटर वाले जो पाइल्स है वो 5 पाइल के साथ कनेक्टेड है। तो 4 पाइल्स को आप 1 2 3 है क्या सिर्फ, ओके सॉरी, तो 4 पाइल्स 3 के साथ कनेक्टेड है। तो 1 - 3 into 1/16, 13/16, इट इज 0.8125, it is 0.8125 for 4 piles which are in the end। और जो 2 पाइल्स है सेंटर में, ये 5 पाइल के साथ कनेक्टेड है, और जब ये 5 पाइल के साथ कनेक्टेड है, 1 - 5 into 1/16, इट इज 11/16, इट इज 0.6875। 4 पाइल्स एफिशिएंसी दे रहे 0.8125, 2 पाइल्स दे रहे 0.6875। इसका एवरेज निकालो। एवरेज कैसा निकालते? 4 पाइल्स के लिए 0.8125, 4 into 0.8125, और फिर 2 पाइल्स का भी एवरेज निकालो। 2 पाइल्स के लिए 0.6875, सो डिवाइडेड बाय 4 + 2 6। तो आप सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट 77.1%। आ रहा कुछ समझ में? This is 77.1% efficiency when 6 piles are in group. When 6 piles are in group. Got the answer? Okay. So I hope you are getting it. नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आपको मैं फिर शुरू से रिपीट करता हूं। एक बार में समझ में नहीं आता, थोड़ा कंफ्यूज होता। Now coming to 9 piles. Last one, 9 piles. देखिए 9 पाइल्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 piles I have arranged here. I have arranged 9 piles. Of course 9 pile अरेंज करने का सबसे इजी तरीका यही है, होगा। उसके बाद अब मैं सबसे पहले ये एंड वाला पाइल कंसीडर करता हूं, और मुझे ये बोलो एंड वाला पाइल कितने पाइल्स के साथ कनेक्टेड है। एंड वाला पाइल। So before solving this, again I will repeat you one notification. Today there is guest lecture. Today there is guest lecture. Okay, Pragati, right? So today there is guest lecture. One of my student and my friend Ram Pant, very expert in steel structures as well as RCC structures, who is now head research lab in Ultratech Cement. So he is going to take the class. मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड ही इज वेरी एक्सपर्ट। अभी नहीं, उसके बाद में भी हम उसके क्लास में अरेंज करूंगा। आप बेसिक स्टील सीखो, बेसिक आरसीसी सीखो। व्हेन वी वर इन द आवर कॉलेज, नो, फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स, सॉम, एफएम और जीटी मैं पढ़ाता था, और हायर क्लासेस आरसीसी, स्टील, एस्टिमेटिंग सब वो पढ़ाता था। हम दो ही पूरा कॉलेज को संभाल लेते थे एट दैट टाइम। सो ही इज वेरी 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 एक्सपर्ट इन आरसीसी एंड स्टील। प्रोजेक्ट में भी यूज हो सकता है, आप उसका नंबर रख लो, टच में रहो कि आई मीन हम लोग ये सब ऑफलाइन, मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कोरोना की वजह से, तो अदरवाइज आई वुड हैव प्लान टू आपको लेकर जाने का एक बार सोचा था मैं। अल्ट्राटेक सीमेंट को नजदीक है, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है सोलापुर से या कुड़वाड़ी से, वुड हैव गॉन, मतलब है ही नहीं चांस। देखेंगे नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल कम टू फाइनल, नो, वी विल गो वंस देयर। ही इज द रिसर्च हेड लैब देयर, तो आपको बहुत फायदा होगा। प्लीज डोंट मिस इट। वहां उससे मुझे कुछ पैसे नहीं मिलने वाले हैं ना, कुछ फायदा मुझे होने वाला है, आपको फायदा होता। प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, आज आप क्लास अटेंड करो। आपको पसंद आया तो आप मुझे बोलो, फिर हम उसका क्लास अटेंड करके आरसीसी का भी बेसिक रखेंगे, फिर स्टील का भी बेसिक क्लासेस रखेंगे। टेंशन मेंबर कैसा डिजाइन करना, कंप्रेशन मेजरमेंट डिजाइन कैसा करना, वो सारे चीजें, प्लेट गार्डर कैसा रहता, क्या रहता, वो बहुत डिटेल में, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। सो एवरीथिंग ही विल टीच। ओके, तो आज का क्लास प्लीज मिस मत करो, और अपने सारे दोस्तों को जो घर में बैठ रहे उनको भी बोल दो। नाउ कमिंग टू 9 पाइल्स। 9 पाइल्स को आ जाओ आप। तो ये जो एंड में पाइल है, ये 1 2 और एक डायगोनली इसको ड्राई कर, मतलब ये एंड वाला पाइल जो है ये 3 पाइल्स को डायरेक्ट कनेक्टेड है। डू यू एग्री विद दिस? यस। तो ऐसा ही ये जो एंड वाला है, ये जो एंड वाला है, ये जो एंड वाला है,
मतलब जो 4 कॉर्नर पॉइंट में है ये सभी कितने पाइल्स को डायरेक्ट कनेक्शन है, ये 3 पाइल्स को कनेक्टेड है। तो यहां पर आप लिख सकते 4 पाइल्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू 3, 1 - 3 into 1/16, so it is 13/16। जो एंड में 4 पाइल्स है वो कनेक्टेड है कितने पाइल्स को, 3 पाइल को, इसलिए वो हो गया 4 into 3/16, 4 into 3/16। अच्छा, एंड हो गया। अब जो ये सेंटर में है, ये दोनों पाइल्स के सेंटर में है, ये देखिए 1 2 और डायगनली 3, ये 4 और वर्टिकली डाउन 5। आप ये भी ले लो 1 2 3 4 5, मतलब ये जो सेंटर में 4 पाइल्स और बचे ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है 5 पाइल्स को। डू यू एग्री विद दिस? तो टोटल 9 है, 9 में 1 2 3 4 जो एंड में है ये 3 पाइल्स को डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसलिए 1 - 3 into 1/16, इट इज गोइंग टू बी 13/16। अब जो सेंटर में है 1 2 3 4 4 पाइल्स, सो ए 5 पाइल्स को डायरेक्ट कनेक्टेड है, सो 1 - 5 into 1/16। व्हाट आइडिया? अब सेंटर में एक पाइल है, अभी हमको ये आया ही नहीं। अब मुझे बोलो ये डायरेक्ट कितने पाइल के साथ कनेक्टेड है? यस प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। या कोई करके रखा ऑलरेडी, आप लोगों को आइडिया आया थोड़ा? यस वेरी गुड, एवरीबॉडी डिड इट राइट। देखिए जो सेंटर में पाइल है ये बिल्कुल सही है, आप लोग सब कर रहे हैं, अब समझ में आ रहा है आपको थोड़ा। ये 8 पाइल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, मतलब सेंटर वाला हर पाइल के साथ कनेक्टेड है डायरेक्ट। और एंड कॉर्नर में जो है 3 पाइल के साथ, सेंटर में जो है वो 5 पाइल के साथ। तो ये है 4 piles, 1 - 3 into 1/16, it is 13/16। If you want, you can take it in decimal also, but no need, that is up to you, calculation कैसा करते हैं आप। 4 piles जो है 1 - 5 into 1/16, तो ये बनता 11/16, ये बनता 11/16। उसके बाद एक पाइल जो है 1 - 8 into 1/16, that is 8/16, it is 0.5, it becomes नो प्रॉब्लम। सो अब इसका एवरेज निकालो, तो इसका एवरेज कैसा निकालना? हाँ, इसका एवरेज देखिए 4 into 13/16, 4 piles 11/16, 1 pile 8/16 divided by number of piles, that is 9, or you can write 441, so it is 72.2%। अब आ रहा क्या आपको समझ में? अब आ रहा क्या आपको समझ में? तो प्लीज कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप नहीं तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, आता आपको। ओके, गॉट इट प्रगति? सो अब आ रहा है सबको आपको? तो अगर से आया सबको समझ में तो फटाक से मैं 2 3 4 मिनट टाइम देता हूं, 16 पाइल्स का एफिशिएंसी बाय फेल्स रोल निकाल के बताओ जल्दी फटाफट। 4 रोज 4 कॉलम्स ले लो और 16 का एफिशिएंसी बाय फेल्स रोल निकाल कर बताओ। 4-5 मिनट टाइम देता हूं मैं आपको, उसके बाद मैं आपको एक बार फिर सारा समझा देता हूं। दिखता नहीं आंखों को, सब गलत गलत पड़ती। यस प्लीज राइट। 4 रोज 4 कॉलम्स में ले लो और टाइम ले लो, उसके बाद मैं आपको फिर रिपीट करता हूं। इसमें पहले में हम क्या करे थे एक बार और रिफ्रेश करता हूं आपको, और ये समझ में आया तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये हर एग्जाम में पूछ लेता मैक्सिमम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक।
Do it for 16 piles, please. మొత్తం 16 यस करें ना आप लोग 16 का. You arrange in 4 rows and 4 columns. फिर देखो एंड के कॉलम्स को पकड़ो, कितने को डायरेक्ट कनेक्शन है डायरेक्ट. फिर सेंटर के देखो, देखो ऐसा कनेक्शन निकालो डायरेक्ट और करो. somebody has did it, very good. I think it is right, Shital. Yes, others please. Yeah, 2 more fellows did. Yeah, very good. Prapti, Priyanka, you got more. Sheetal and Sonali Patil are accurate. Prapti थोड़ा तुम्हारा अलग दिख रहा बेटा. फिर भी देखो प्रियंका बहुत आया तुम्हारा. See, one thing I will tell you. देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब 2 था क्या था आंसर 93, 3 था 87, 4 थे तो मेरे ख्याल से आंसर और कम हो गया 87.3 था. और ये जब 5 हो गए तो 80 हो गया, 6 हो गए तो 5 थे, 6 तो 77 और 9 हो गए तो 72. तो मतलब जैसे जैसे पाइल्स बढ़ते जा रहे वैसे वैसे एफिशिएंसी कम होते जा रही. गौरव तुम्हारा बहुत ही कम आया. फिर भी देखो अब मेरे पास आंसर्स मैं ढूंढना पड़ता. सो व्हाट द आंसर्स यू गॉट आई विल टेल यू. Sheetal and Sonali has got same answer, that is 67.18. I think this is right one. Prapti has got little bit more 67.7. Gaurav yours is 66.75. देखिए कहाँ तो थोड़ा बहुत भी गलत हुआ तो गलत हो सकता है.
who is right I cannot tell here, but please check it. तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको आया होगा ना? ओके, तो इस तरह जैसे जैसे पाइल्स बढ़ते जाते, एफिशिएंसी कम होते जाती। अब आप बोलेंगे सर क्या जरूरत है पाइल्स बढ़ाने का, कम पाइल्स में करेंगे। ऐसा नहीं होता, लोड बहुत रहता, काम बहुत रहता, तो उस वक्त आपको पाइल्स को ग्रुप में रखना ही पड़ता। लेकिन एज सोनाली हैज आस्क्ड सर व्हाट शुड बी द स्पेसिंग, तो हम जब स्पेसिंग करेंगे, हम स्पेसिंग ऐसा करेंगे बेटा कि वो 100% एफिशिएंसी देना। तो वो कैसा करेंगे, दैट व्हेन आई डिजाइन दिस फाइल इन ग्रुप्स, दैट आई विल टेल यू। व्हेन आई डिजाइन द थिंग्स इन ग्रुप्स, आई विल टेल यू। ओके, सो तो ये है फेल्ड्स रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान लो आपको आना ही आना है, ये ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में आना ही आना है, तो ये आपको आइडिया रहना। ओके, इसके बाद कॉन्वर्स लेबर फॉर्मूला है और बहुत सारा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, पाइल मैं आराम से पढ़ाऊंगा आपको, मुझे सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। मैं और स्लो जा रहा था, लेकिन उतना भी नहीं है, प्रॉब्लम कम कराऊंगा, लेकिन हर प्रॉब्लम करा के आपको परफेक्ट करा के पाइल्स में आपको डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूँ। इसके बाद नेगेटिव डिजाइन ऑफ ग्रुप पाइल फाउंडेशन कराऊंगा, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कराऊंगा। उसके बाद और आप लोग भी पाइल और बेरिंग कैपेसिटी दो बहुत अच्छी तरह पढ़ लो। बाकी के सब आप सॉइल एक्सप्लोरेशन थ्योरी है, ये 2, 2.5, 3 चैप्टर जो है गेट एग्जाम में मैक्सिमम इनके ऊपर ही क्वेश्चंस रहते, तो आप इनको अच्छी तरह कर लो। 1, 2, 3 हर बार 2 मार्क्स पाइल पे और 2 मार्क्स बेरिंग कैपेसिटी पे। मैं अब तक ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, गेट में पूछते रहता हूँ। तो फाउंडेशन में ये 2 चैप्टर अच्छी तरह कर लो, मैं भी डिटेल में जाता हूँ। और मेरे ख्याल से आपका अभी एग्जाम डेट आया नहीं है ना, तो हो सकता है कभी भी आ जाए, लेकिन 15 तारीख से तो पहले नहीं होता, तो 15 तारीख तक तो मैं क्लास ले ही सकता हूँ। तो एक बार मैं इफ आई कंप्लीट द पाइल फाउंडेशन परफेक्ट हो, उसके बाद मैं सिचुएशन देख के करता हूँ। अगर से एग्जाम जल्दी है तो थ्योरी 2-2 दिन एक चैप्टर करके खत्म कर दूंगा, या नहीं और भी आगे है, लास्ट वीक तक है, तो और वो सभी चैप्टर भी मैं डिटेल में, स्पेशली आई वांट टू गो इन डिटेल फॉर शीट पाइल वॉल्स। शीट पाइल वॉल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं डिटेल में कराऊंगा, वो पढ़ा बताना पड़ता। एंड आफ्टर दैट आई विल गो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्लूप्स, वो थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो नाउ यू गेट टेक अ break of 2-3 minutes again, and when you come back I will revise these things, and I will go for this foundation, group foundation. Okay, so I hope this is clear to you. नहीं है तो भी मैं आपको एक बार रिवाइज करता हूं, और आपको ये बताता हूं कि यहाँ पर हम 5 के बाद एवरेज लेते गए, तो यहाँ पर एवरेज क्यों नहीं लिए, इसके बारे में भी सोचो। 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए हम एवरेज नहीं लिए, जबकि 5 के साथ हम एवरेज लेना शुरू करें, ऐसा क्यों? इसका आंसर मैं चाहता हूं आपको इस ब्रेक के बाद। ओके, सो थिंक अबाउट इट। फ्रॉम व्हेन द पाइल्स वर 5 वी हैव टेकन एवरेज हर पाइल्स में, लेकिन पहले नहीं करे हम ऐसा, ऐसा क्यों? तो इसका भी आंसर दे दो मेरे को आप। सो नाउ यू टेक अ ब्रेक ऑफ